Hello students, very good morning. How are you? Alka Githala, Aman Yadav, Arushi, Vineet, Anjali, Pratima, Piyush, Bhumika, Garv, Bindu, Neha. Very good बेटा, फटाफट से क्लास ज्वाइन करेंगे. After that we will start our English class, and today in English I will teach you about the verbs. Today we will complete the topic of verb. वर्ब जो टॉपिक है वो आज हम फाइनली कंप्लीट कर देंगे. I'm also fine बेटा, दिख रहा है ना, बिल्कुल एकदम अच्छी हो. आप सभी भी जल्दी से एक बार फेस एक्सप्रेशन, थंब इम्प्रेशन दे करके दिखाएं. कैसे हैं सभी बच्चे, बता दीजिए फटाफट से. चलिए गुड, सभी बच्चे अच्छे हैं. ओके बेटा, so are you ready to take the class? Okay students, so I'm starting again. The topic of verb. In classification of verb, क्लासिफिकेशन ऑफ वर्ब, क्लासिफाई किया था हमने इसको 2 पार्ट्स में. मेन वर्ब, सेकेंड इज auxiliary verb. Auxiliary verb. So this verb is completed. Main verb is completed and today we will study about auxiliary verb. ठीक है, auxiliary verb के बारे में पढ़ेंगे. So students, when we talk about auxiliary verb, then this is the different name of verb. थोड़ा सा different name है auxiliary verb, और सुनकर के आपको ऐसा भी लग रहा होगा कि ये कौन सी verb है. So students, मैं इसे easy कर देती हूँ. I'll make it easy by the name of helping verb. Helping verb. Have you understood? Helping verb. मैंने इसे easy कर दिया है. Auxiliary verb को ही हम helping verb भी कह सकते हैं. So auxiliary verbs are helping verbs. अब देखिए, auxiliary verb जो है इसको भी हम 2 काइंड्स में डिवाइड कर लेंगे. ऑक्सिलरी वर्ब भी 2 तरह की होती है. फर्स्ट इज प्राइमरी वर्ब. फर्स्ट इज प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब, और सेकेंड वन इज मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब. मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब. अब जो प्राइमरी ऑक्सिलरीज जो होती हैं उनमें कौन कौन सी वर्ब शामिल होती हैं, सो हम देख लेते हैं. हमारी जो प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब हैं, विच आर द प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब्स. सो जो प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब्स हैं इनको भी 3 ग्रुप्स में जो है डिवाइड किया हुआ है. 3 ग्रुप्स के जरिए हम इसे समझने वाले हैं. हाँ बिल्कुल, चलिए देखिए. सो फर्स्ट है हमारी, इसमें 3 ग्रुप्स बना दिए हमने. पहला हमने बनाया है, फर्स्ट इज फर्स्ट ग्रुप हमने बना दिया टू बी. फर्स्ट ग्रुप बनाया 2B. 2B में कौन कौन सी हेल्पिंग वर्ब शामिल होती हैं बच्चों? इज, एम, आर, was,
वर, ठीक है, is, am, are, was, were. These are the group, these verbs are included in to be group. ये to be group में शामिल होती हैं. सेकेंड ग्रुप हम बनाते हैं to do. to do के पास कौन कौन सी हेल्पिंग वर्ब होती हैं? do, does, did. do, does and did. वेरी गुड विनीत. और थर्ड ग्रुप हमारा है टू हैव. हैव के पास कौन कौन सी हेल्पिंग वर्ब है? हैज, हैव एंड हैड. हैज, हैव एंड हैड. These are the primary verbs. Primary auxiliary verb are divided in three groups. First is to be, second is to do, and third is to have. In to be, is, am, are, was, were are included. In to do group, do, does, did are included, and to have, has, have, and had included. Okay. Mean total primary helping verbs are 11. Total primary helping verbs are 11. हाँ, very good Vineet. So 11 primary verbs सभी बच्चों को ध्यान रखनी है. 3 groups: to be, to do, to have, is, am, are, was, were, do, does, did, has, have, had. These are the 11 primary helping verbs. Now we come on the model auxiliary verb. अब model auxiliary देखते हैं. मॉडल कौन कौन से होते हैं? So मॉडल auxiliary में देखेंगे can, could, may, might, must, ought to, need not, shall, will, should, would, dare. Very good Sneha. Models are can, could, may, might, must, ought to, need not, shall, will, should, would, dare. So these are the model auxiliary verbs: can, could, may, might, must, ought to, need not, shall, will, should, would, dare. These are the model auxiliary verbs. Have you noted? Noted, students? So with this our वर्ब चैप्टर इज कंप्लीटेड स्टूडेंट्स. हमारा जो वर्ब टॉपिक है उसका क्लासिफिकेशन कंप्लीट हो गया है. और यूज़ ऑफ ऑक्सिलरी, जो प्राइमरी ऑक्सिलरी है, ये तो आप सभी स्टूडेंट्स ने इनका यूज़ किया है, खूब यूज़ किया है व्हेन यू स्टडीड टेंस. जब आपने टेंस पढ़ा था तो आपने प्राइमरी वर्ब्स जो हैं वो यूज़ की हैं, बिल्कुल की हैं. प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस में, यहाँ पर डू, डज, डिड का प्रेजेंट इंडेफिनिट में, पास्ट इंडेफिनिट में, और हैज़, हैव, हैड का प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट टेंस में यूज़ किया है ना बच्चों. बात आती है मॉडल की. तो मॉडल का आपके सिलेबस में एक अलग से चैप्टर है पूरा, जिसमें मॉडल को डिफाइन किया गया है. वेयर वी यूज कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, ought to, नीड नॉट, शैल, विल, शुड, वुड, डेयर, कहाँ पर किस मॉडल का यूज किया जाता है, ये पूरा आपका एक अलग से चैप्टर दिया हुआ है.
So in that chapter we will study about model and you have studied about प्राइमरी ऑक्सिलरीज प्रीवियसली, पहले पढ़ चुके हो आप इनको। मेन वर्ब जो है वो मैंने आपको करवा दिया है, क्योंकि आप कंप्लीट चार्ट आपका नहीं हो पाया था, इसलिए आप इस चार्ट को कंप्लीट कर लीजिए। मेन वर्ब जो है, मेन वर्ब को भी 2 पार्ट में हमने डिवाइड किया था। कौन कौन सी थी? फर्स्ट इज ट्रांजिटिव वर्ब and second one is intransitive verb। ठीक है, याद रखने के लिए यहां पर ट्रांजिटिव वर्ब के साथ लिख लेना विथ ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ट्रांजिटिव वर्ब विथ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट यूज होती है। इनट्रांजिटिव वर्ब के लिए लिख लीजिए विथ इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, ओके। फॉर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट व्हाट विल यू आस्क? क्वेश्चन क्या करोगे इसमें? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के लिए व्हाट और टू हुम, या तो आपको व्हाट का आंसर मिलेगा या टू हुम का आंसर मिलेगा। ठीक है, लिंकिंग वर्ब अलग है बेटा, लिंकिंग अलग है, वो डिफरेंट है। लिंकिंग वर्ब नहीं होती, वर्ड होते हैं। लिंकिंग वर्ड होते हैं, वर्ब नहीं होती है। ठीक है, डन। अगर व्हाट हुम का आंसर मिले तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, अगर इनका आंसर नहीं मिले तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। सो विद दिस बेटा आवर वर्ब टॉपिक इज कंप्लीटेड। ठीक है, वर्ब हमारा टॉपिक जो है कंप्लीट हो गया है। एंड एज यू नो टुमारो इज 5th September एंड ऑन 5th September वी सेलिब्रेट टीचर्स डे। करते हैं ना, टीचर्स डे सेलिब्रेट करते हैं। बट नाउ यू आर एट होम, यू आर नॉट कमिंग इन स्कूल, दैट्स वाई आई वॉन्ट टू सेलिब्रेट टीचर्स डे विथ यू। बट हाउ? In this way that you will prepare something, any song, any poem or anything. What do you want to prepare on Teachers Day? You will make a clip, video clip you will make and you will send on the school's WhatsApp number। ठीक है, आपको, आप जो भी प्रेजेंटेशन देना चाहते हैं उस प्रेजेंटेशन के लिए आपको क्या करना है? अपने आप को रेडी करना है, बिल्कुल जैसे आप हमेशा प्रेजेंटेशन देते हैं। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, माय नेम इज दिस, आई स्टडी इन दिस क्लास एंड टुडे आई वांट टू प्रेजेंट दिस। ठीक है, इन बिहाफ ऑफ टीचर्स डे, कि टीचर्स डे पर आपने कोई छोटा सा स्पीच रेडी कर लिया है, कोई पोएम या कोई सॉन्ग, या फिर आपने मिमिक्री की है, या जो कुछ भी आपने प्रिपेयर किया है, आपने कोई अच्छा सा मैसेज ड्रॉ किया है, तो जो भी आपने कुछ प्रिपेयर किया है उसे आपको क्या करना है? छोटा सा वीडियो क्लिप बनाना है और स्कूल के व्हाट्सएप नंबर पर आपको सेंड कर देना है। ठीक है, तो चेक करेंगे जिन स्टूडेंट्स के वीडियो सबसे अच्छे होंगे, बेस्ट होंगे, उनको यूट्यूब पर डाला जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, सो सभी बच्चे टीचर्स डे घर बैठ करके भी सेलिब्रेट करें। ठीक है, आपके घर में आपकी मम्मा, आपके पापा, आपके ग्रैंड पेरेंट्स या जो भी बड़े हैं, पहले सबसे पहली तो टीचर आपकी मम्मा होती है, और मम्मा के बाद में हमारे जो बाकी सभी फैमिली मेम्बर्स होते हैं वो भी हमारे टीचर ही होते हैं, क्योंकि उन्होंने
ABCD तो पढ़ना नहीं सिखाया होगा, लेकिन लाइफ में आगे कैसे जीना है या डेली घर में किस तरह से रहना है, बहुत सारी छोटी छोटी बातें हैं जिनको हम कभी नोटिस भी नहीं करते हैं, लेकिन वो हमें वो बातें सिखा जाते हैं। तो हमारी लाइफ में जो भी हमें कुछ सीख देता है, कुछ सिखाता है, कुछ समझाता है, वो हर इंसान हमारे लिए टीचर ही है। सो स्टूडेंट्स, यू विश टीचर्स डे टू योर पेरेंट्स ऑल्सो। अपने पेरेंट्स को टीचर्स डे विश करना। आपके कोई बड़े बहन भाई हैं जो आपको बिल्कुल ट्रीट करते हैं, इसी तरह से आपको समझाते हैं, सिखाते हैं, उनको भी आप टीचर्स डे विश करो, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। सो थैंक यू, बाय, हैव अ नाइस डे।